My dear students, welcome to Mathological. This is the third session on the topic of remainders, and we'll be learning today cyclicity of remainders. Though we are already using cyclicity, और previous questions में हमने कई बार use किया है, but in this session we'll be understanding the concept of cyclicity, how that happens, and then we'll be applying it to some very beautiful questions. Start करते हैं. And it will be at most beneficial if you have not watched the first two sessions, तो पहले उनको check out करो, उसके बाद में थर्ड सेशन देखोगे तो बेस्ट समझ में आएगा. Okay, so cyclicity of remainders is the topic. And to understand it, we will be taking one example. And let us take the simplest example. We are dividing 2 to the power n by 3, and we need to find out what will be the remainder. We are dividing 2 to the power n by 3, and what should be the remainder? Okay, so 2 to the power n की values क्या होगा? When n is equal to 1, it will be equal to 2. When n is equal to 2, it will be 4. When n is equal to 3, it will be equal to 8. So n is equal to 1 पे this is 2, n is equal to 2 पे this is 4, n is equal to 3 पे this is 8, n is equal to 4 पे this will be 16, n is equal to 5 पे this will be 32, n is equal to 6 this will be 64, n is equal to 7 this will be 128, n is equal to 8 this will be 256, and so on. So what will be the remainder? If we are dividing by 3, 2 divided by 3 will give us remainder equal to 2. Remainder equal to 2. 4 divided by 3 will give us remainder equal to 1. 8 divided by 3 will give us remainder equal to 2. 16 by 3 remainder will be equal to 1. 32 by 3 remainder will be 2. 64 by 3 remainder will be 1. 128 by 3 126 तो डिवाइड हो जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा. 256 by 3 remainder will be equal to 1 only. So basically there is a clear pattern that remainder is repeating 2 1 2 1 2 1 2 1. So there is a cyclicity of two remainders. First remainder is 2, then 1, then again 2, then again 1, then again 2, then again 1. And why is that happening? Because once we have remainder equal to 1, the cycle repeats. Once we have remainder equal to 1, the cycle keeps on repeating. Isn't it so? Isn't it so? Or basically cycle क्यों कह रहे हैं? Because 2 and 1, and then again 2 and 1, and so on and so forth. That is all going on. So there is a cycle of 2, cyclicity of 2 in remainders. Isn't it so? There is a cyclicity of 2. Also, if you are dividing some number by 3, तो remainder क्या क्या हो सकता है? If you are dividing some number by 3, remainder can be 0, or it can be 1, or it can be 2. Remainder can be 0, or it can be 1, or it can be 2. And definitely 2 to the power n is not a multiple of 3. 3 का multiple तो नहीं है, और अगर 3 का multiple नहीं है तो 0 तो नहीं आ सकता remainder. So remainder can only be 1 and 2, and that is happening in a cyclicity. That is happening in a cycle. Basically, if we are dividing 2 to the power n by 3, and we need to find out the remainder. So if we are dividing 2 to the power 1 by 3, and we are getting remainder equal to 2. So if we are dividing 2 to the power n by 3, remainder should be 2 को पहले r लिख देते हैं. So if remainder is r, so remainder should be in this case क्या होगा? r to the power n divided by 3 में जो remainder आएगा. अब क्योंकि यहाँ पे r is also equal to 2, तो सेम ही क्वेश्चन बन गया. बट इन लार्जर क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल, if let us say we are dividing 11 to the power n by 3, and we need to find out the remainder. So 11 divided by 3 remainder क्या देता है? That gives us remainder equal to 2, which is equal to r. Okay, so अगर 11 divided by 3 is giving remainder r, so 11 to the power n divided by 3, remainder should be r to the power n divided by 3 का रिमाइंडर. और r यहाँ पे क्या है? 2 है. 2 to the power n divided by 3 जो हमें रिमाइंडर देगा, दैट विल बी आवर आंसर. ठीक है, और इसी को हमने समझा कैसे था? 11 कैन बी रिटन एज 9 प्लस 3, 9 प्लस 2. सो 9 प्लस 2 टू द पावर n को डिवाइड कर रहे हैं हम 3 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर विल बी ओनली बिकॉज ऑफ दिस टर्म 2 टू द पावर n. तो ये सेम चीज तो की थी हमने. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ठीक है, अब इसका अप्रोच क्या है और इससे हमें हेल्प क्या मिलेगा? क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी सीख ही चुके हैं, तो क्या हेल्प मिलेगा इससे? ठीक है, एंड व्हाई इज दैट हैपनिंग? अब देखो हो क्या रहा है. व्हेन वी आर डिवाइडिंग 2 स्क्वायर बाय 3, the remainder comes out to be equal to 1, comes out to be equal to 1, because remainder हमारा r स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, और रिमाइंडर r इज इक्वल टू, तो r स्क्वायर हमारा इक्वल टू 4, और 4 को डिवाइड करो 3 से, रिमाइंडर आ रहा है 1. बट अब फिर से एक बार जब 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 2 स्क्वायर को जब 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? दैट विल बी 1 इंटू 2 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो अगेन क्या आया?
1 हमारा आ गया और फिर मल्टीप्लाई करो 2 से, तो फिर से हमारा साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं सो दैट चीजें और बेटर क्लियर हो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से वी आर डिवाइडिंग 5 टू द पावर n बाय 7 एंड वी नीड टू फाइंड आउट रिमाइंडर्स। ठीक है, एक चीज जो बिल्कुल समझ में आता है, 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो फॉर श्योर रिमाइंडर्स कैन बी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। टोटल 7 वैल्यूज आर पॉसिबल। Total 7 values of remainder are possible. Okay, so 5 to the power n or remainder, 5 to the power n, 5 to the power 1 is 5, 5 square is 25, 5 cube is 125, 5 to the power 4 is 625, 5 to the power 5 is 3125. So if we are dividing 5 by 7, remainder is 5 only, 5 only. 25 by 7, remainder is 4. 125 by 7 remainder is coming out to be 4. एक सेकेंड 25 by 7 remainder is 4 ही तो आ रहा है, 4 ही तो आ रहा है, 4 only. and 125 by 7 remainder is 6. 625 by 7 remainder क्या आएगा? This will be 2. 3125 by 7 remainder will be 28 चला जाएगा, 32, 45, तो 3 रिमाइंडर आ गया हमारा। नेक्स्ट पावर पे रिमाइंडर क्या आएगा? दैट विल बी 15625. सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? ठीक है, 7 से डिवाइड करो, 14, 14, 22, 21, 1 विल बी द रिमाइंडर. सो नाउ द साइकिल विल रिपीट and number of remainders are 5, 4, 6, 2, 3, 1. obviously 0 तो रिमाइंडर नहीं आ सकता because 5 to the power n is not a multiple of 7. तो कॉम्पोजिट नंबर होता बात लगती, बट ये तो स्ट्रेट अवे 5 to the power n है, तो डेफिनेटली रिमाइंडर 0 तो नहीं आएगा. सो यहां पे देयर इज अ साइक्लिसिटी ऑफ 6. देयर इज अ साइक्लिसिटी ऑफ 6. ओके, बट इसको और बेटर तरीके से कैसे कर सकते थे वो भी समझते हैं. देखो, सबसे पहले जब हमने डिवाइड किया 5 को 7 से, रिमाइंडर केम आउट टू बी 5. ठीक है, so let us say this is equal to r. so next time when we are dividing 5 to the power n by 7, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? रिमाइंडर will depend on r square यानी 5 into 5. रिमाइंडर will depend on 5 into 5. तो 25 divided by 7 रिमाइंडर will come out to be 4. नेक्स्ट टाइम जब डिवाइड करोगे तो बेसिकली क्या कर रहे हो? 4 तो हमारा ऑलरेडी रिमाइंडर आ चुका है r स्क्वायर के 5 स्क्वायर के लिए. वी आर मल्टीप्लाइंग फर्दर बाई 5, तो मल्टीप्लाई बाई 5 इन दिस वैल्यू, रिमाइंडर पे मल्टीप्लाई करो. 4 into 5, ठीक है, 4 into 5 करो, 4 into 5 is 20. 20 को डिवाइड कर रहे हैं हम 7 से, तो रिमाइंडर विल बी 6. इज दैट क्लियर? इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 125 by 7, 20 को डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर विल बी 6. ओके, एंड देन 6 को अगेन मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे? रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करो किससे? फिर से 5 मल्टीप्लाई करो, तो रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करो 5 से, इंस्टेड ऑफ टोटल वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के, क्योंकि रिमाइंडर सेम ही आएगा दोनों केसेस में, रिमाइंडर सेम ही आएगा. ठीक है, सो 6 into 5 is 30. 30 डिवाइड बाई 7, रिमाइंडर विल बी 2. Again multiply this 2 with 5 because we are multiplying by 5. 2 into 5 is 10. 10 divided by 7, remainder will be 3. And then again 3 multiplied by 5 is 15. 15 divided by 7, remainder will be equal to 1. Remainder will come out to be equal to 1. There is another observation. Take another observation which we can find out. So 7, say if we are dividing, let us say we are dividing some number a by 7 and remainder comes out to be equal to 6. So if remainder is 6, so basically our number is just one short of next multiple of 7, क्योंकि अगर 1 और ऐड कर देंगे तो 7 का मल्टीपल हो जाएगा. So basically we can say that the remainder is 6 or minus 1. So in this case the remainder is minus 1. This is just 1 less than next multiple of 7, isn't it so? So 5 cube divided by 7 gives us remainder minus 1. ठीक है, so if 5 cube divided by 7 is giving us remainder minus 1, तो 5 to the power 6 कर दो, स्क्वायर कर दो, रिमाइंडर भी स्क्वायर हो जाएगा. तो 5 to the power 6 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? -1 का स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू +1. सो एक बार -1 रिमाइंडर मिल गया तो हमें पता है +1 कब आएगा? स्क्वायर करने पे आएगा. +1 स्क्वायर करने पे आएगा. क्या ये पार्ट क्लियर है? ओके, अब जस्ट इन केस क्वेश्चन हमसे पूछे कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन वी आर डिवाइडिंग 5 to the power 172 by 7, so what will be the remainder? What will be the remainder? तो रिमाइंडर पे हमें साइक्लिसिटी पता चल गया. साइक्लिसिटी इज ऑफ 6. 6 का साइक्लिसिटी 5, 4, 6, 2, 3, 1. दीज आर द रिमाइंडर्स. 5, 4, 6, 2, 3, 1. ठीक है, सो इफ आवर, क्योंकि साइक्लिसिटी 6 का है, तो जो भी हमें पावर गिवन होगा, पावर गिवन है 172.
सो वी नीड टू फाइंड आउट 172th रिमाइंडर कौन सा होगा 5 टू द पावर n में, इज एंड इट सो? और हमने फर्स्ट 6 आइडेंटिफाई कर लिया है, तो 7th कौन सा होगा? 7th अगेन विल बी 5, 8th विल बी 4, देन 6, देन 2, देन 3, देन 1. सो बेसिकली व्हेन अवर पावर 5 टू द पावर n डिवाइड बाई 7 हम कर रहे हैं, सो व्हेन द पावर n इज अ मल्टीपल ऑफ 6k, रिमाइंडर विल बी 1 ओनली. रिमाइंडर हमारा 1 ही होगा. तो व्हेन द पावर n इज अ मल्टीपल ऑफ 6, रिमाइंडर विल बी 1. When the power is a 6k plus 1, remainder will be 5. 6k plus 2, remainder will be 4. 6k plus 3, remainder will be 6. 6k plus 4, remainder will be 2. 6k plus 5, remainder will be 3. So we only need to find out कि 172 को डिवाइड करते हैं 6 से, रिमाइंडर कितना बच रहा है, और वही हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, 172 डिवाइड बाई 6, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 6 से जा रहा है हमारा कितना 12, 52. तो 4 इज द रिमाइंडर. सो बेसिकली दिस विल बी अवर आंसर. 6k plus 4, तो 2 विल बी अवर आंसर. ठीक है, बेसिकली 172 इज 5 टू द पावर 6k plus 4, and that is being divided by 7. So remainder will be equal to 2 only, or remainder will be as good as when we are dividing 5 to the power 4 by 7. Both are the one and the same things. Remainder will be as good as when we are dividing 5 to the power 4 by 7, and which will be equal to 2 only. क्या ये क्लियर है? ओके, ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हेनेवर वी आर डिवाइडिंग दिस एक्सरसाइज, सो ऑल दीज नंबर्स, द डिवाइजर एंड डिविडेंड, ठीक है, दीज शुड बी कोप्राइम. डिवाइजर एंड डिविडेंड यानी कि 7 and 5, 7 and 5 शुड बी कोप्राइम, शुड बी कोप्राइम. और अगर 7 and 5 कोप्राइम है, उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 5 टू द पावर n भी कोप्राइम ही होगा. इफ 7 and 5 आर कोप्राइम, देन 7 and 5 टू द पावर n विल आल्सो बी कोप्राइम. बिकॉज जब 5 के साथ कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 5 टू द पावर n के साथ भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा. एंड देन वी कैन अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी ऑफ रिमाइंडर्स वेरी इजीली. तो अब मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा. ठीक है, अप्लाई तो हमने लास्ट सेशन में भी किया है, बट अब तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा क्यों ये चीजें हमें हेल्प करती हैं डेफिनेटली, और कैसे हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस में इनको अप्लाई कर सकते हैं, वो भी देखते हैं. क्या ये बात क्लियर है? इज दिस क्लियर? अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे कि डिवाइजर एंड डिविडेंड आर नॉट कोप्राइम, दे आर नॉट कोप्राइम, और वहां पे देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा. ओके, सो द सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. 2 to the power n is divided by 12. So what should be the remainder? What should be the remainder? 2 to the power n is equal to 1 पे 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. And we need to find out remainder when dividing by 12. तो 2, 4, 8 पे तो यही नंबर्स आ जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे 2, 4 and 8. 16 divided by 12 will give us remainder 4. 32 divided by 12 will give us remainder 24, तो चला गया, 8 रिमाइंडर बचा. 64 by 12, 60 तो मल्टीपल है, 4 बचा. 128, 120 मल्टीपल है, 8 बचा. 56, 240 मल्टीपल है, 16 बचा, और 16 डिवाइड बाई 12 यानी कि 4 रिमाइंडर बचा. यानी कि देयर इज क्लियरली अ साइक्लिसिटी. बट प्रॉब्लम ये आ रहा है, हमें इनिशियली नंबर 2 मिला है, फिर 4 मिला है, फिर 8 मिला है, फिर 4 मिला है, फिर 8 मिला है, फिर 4 मिला है, फिर 8 मिला है, फिर 4 मिला है. यानी कि इनिशियली ये जो 2 है, दिस इज प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. फिर तो दिख रहा है हमको 4, 8 का साइकिल है. 4 के बाद नेक्स्ट पे भी 8 मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारा 5 and 2 पे भी 8 मिलेगा. सो 4, 8 का फिर साइकिल दिख रहा है. और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज दीज नंबर्स आर नॉट कोप्राइम, दे आर नॉट कोप्राइम, दैट इज वाई. सो व्हेन नंबर्स आर नॉट कोप्राइम, व्हाट वी शुड डू? वी शुड बी टेकिंग पावर एज कॉमन. पावर को कॉमन लेना पड़ेगा, तो चीजें ठीक हो जाएंगी. इजंट इट सो? सो सेम काम यहां पे करते हैं. 12 इज बेसिकली 2 square into 3. तो 2 square को कॉमन ले लेते हैं. So 2 to the power n by 12 and we need to find out remainder. 2 square को कॉमन ले लिया, so inside the bracket will be 2 to the power n minus 2 divided by 3, and then we have to find out remainder. अब this question is same as the starting question, this question 2 to the power n divided by 3, और अब साइक्लिसिटी आ जाएगा हमारा सिंपल सा. ठीक है, so there will be cyclicity of 2, क्योंकि रिमाइंडर्स हमारे क्या होंगे 2 1 2 1 2 1 and so on. चेक भी कर सकते हैं. ठीक है, so n is equal to, n की वैल्यू पुट करते हैं, और n शुड बी ग्रेटर देन, क्योंकि अब n -2 है, 2 to the power n -2 है, तो n को हमें क्या रखना पड़ेगा? मिनिमम वैल्यू n की रख सकते हैं 3. n इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो n इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट करेंगे, नंबर हो जाएगा 2 to the power n -2 यानी 2 to the power 3 -2, 2 to the power 1 2, देन नेक्स्ट विल बी 4 8 16 32 64, एंड रिमाइंडर विल बी 2 divided by 3, रिमाइंडर विल बी 2, 4 divided by 3, रिमाइंडर विल बी 1, 2 1 2 1 2 1. बट प्रॉब्लम ये है, बाहर हमने 2 स्क्वायर रखा हुआ है, तो रिमाइंडर जो एक्चुअल रिमाइंडर है, दिस इज अवर रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर.
बिकॉज 2 स्क्वायर को हमने कॉमन लिया हुआ है, तो एक्चुअल रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, दैट विल बी दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 8 हो जाएगा, देन 1 इंटू 4 हो जाएगा, देन अगेन 8 4 8 4, so basically there is a cyclicity of 2 in this case also, isn't it so? And यहां से कंपेयर करेंगे तो क्या हुआ, फर्स्ट 2 पावर्स को हमने सेपरेट किया हुआ है 2 and 4 को, और उसके बाद में 8 4 8 4 8 4 एंड सो ऑन, सो देयर इज अ क्लियर साइक्लिसिटी। सिर्फ साइक्लिसिटी कब नहीं मिलेगा हमें क्लियर, व्हेन नंबर्स आर नॉट कोप्राइम, तो उनको कोप्राइम बनाना पड़ेगा हमें। व्हेन नंबर्स आर नॉट कोप्राइम तो पहले उनको कोप्राइम बनाएंगे, कॉमन फैक्टर्स जो है उनको कॉमन ले लोगे और उसके बाद में फिर रिमेनिंग को सॉल्व कर लोगे। इज दैट क्लियर? क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, ओके 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 ओके। सो क्या चीज है हमने समझ लिया, एक सेकेंड, फाइन। सो बेसिकली if we are dividing some number a to the power n by b and remainder comes out to be equal to 1, if remainder comes out to be equal to 1, then we know, and n is such smallest value, ठीक है, a and b are co-prime, and n is smallest such value, satisfying this condition. In that case, cycle of remainders will be of r distinct values, will be of n distinct values, r नहीं, n distinct values, ठीक है, will be of n distinct values, and definitely since we are dividing by b, तो n will obviously be less than b because number of remainders हमारे equal to b होंगे, ठीक है, so definitely n will be less than b, clear है? okay, next question करते हैं। so if I am dividing 81 to the power 81 by 13, so what will be our remainder? 81 to the power 81 and that is being divided by 13, so what will be our remainder? ठीक है, that is the question. अब 81 and 13 are definitely, they are co-prime, isn't it so? If I are dividing 81 by 13, तो remainder क्या आ जाएगा? Remainder will be 13 6 78, remainder will be 3, ठीक है, so n is equal to 1 पे रिमाइंडर इज 3, n is equal to 2 पे 81 स्क्वायर पे, 81 टू द पावर n है अगर, सो n is equal to 2, यानी कि 81 स्क्वायर पे रिमाइंडर क्या आएगा, 3 स्क्वायर विच इज 9, 81 क्यूब पे रिमाइंडर विल बी 9 इंटू 3 27, बट 27 कैन फर्दर बी डिवाइडेड बाय 13 क्योंकि 27 रिमाइंडर थोड़ी होगा, तो 27 डिवाइड बाय 13 गिव्स अस रिमाइंडर इक्वल टू 1, सो देयर इज अ साइक्लिसिटी ऑफ 3, तो स्ट्रेट अवे हमें क्या देखना है कि हमारा रिमाइंडर्स होंगे 3 9 and 1 3 9 and 1 3 9 and 1, यही साइक्लिसिटी हमारा बनेगा। और 81 टू द पावर 81, दिस 81 द पावर वाला 81, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो डेफिनेटली रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 के बजाय लेट अस से होता हमारा 81 टू द पावर 82 एंड डिवाइड बाय 13, तब रिमाइंडर क्या होता, 82 वुड हैव बीन 3k + 1, 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा होता, यानी कि हमारा रिमाइंडर वुड हैव बीन 3, सेम एज व्हेन द पावर इज इक्वल टू 1, जो 81 टू द पावर 1 में होता वही सेम 81 टू द पावर 82 में भी होता, 81 टू द पावर 3k + 1 में वही सेम रिमाइंडर होगा, सेम रिमाइंडर होगा, सो आंसर विल बी 3 ओनली। बट इन दिस केस सिंस दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3k, सो हमारा केस क्या होगा, व्हेन n इज इक्वल टू 3 वाला, तो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 1, ओके। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 81 कैन बी रिटन एज 78 + 3 बिकॉज 78 इज अ मल्टीपल ऑफ 13, तो 78 + 3 to the power 81 and that is being divided by 13, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर विल बी दिस वैल्यू 3 to the power 81 and we know 3 cube is equal to 27। क्या करते हैं, बेस की पावर को 13 के मल्टीपल में हमें समहाउ कि उसके आसपास लेके आना है, +- 1 में लेके आना है,
ठीक है, तो 3 क्यूब इज इक्वल 27 विच इज 26 प्लस 1, तो 3 क्यूब टू द पावर 27 डिवाइड बाई 13, और 3 क्यूब इज 27, तो 27 इज 26 प्लस 1 टू द पावर 27 डिवाइड बाई 13, तो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 1 टू द पावर 27, यानी कि प्लस 1 ही आएगा आंसर। बट क्या ये अप्रोच समझ में आ रहा है? क्या साइक्लिसिटी का अप्रोच समझ में आ रहा है कि इससे भी हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं? Isn't it so? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, let us take number 558 to the power 75 and this is being divided by 11, so what will be our remainder? Pause the video and try to solve it yourself. क्या आएगा रिमाइंडर हमारा? ठीक है, what will be the remainder? If you are dividing 58 by 11, रिमाइंडर कितना आ रहा है? So for n is equal to 1, अगर 58 to the power n के लिए ऑब्जर्व करें, so for n is equal to 1, remainder is coming out to be equal to 58 is 55 plus 3, so 3 रिमाइंडर आ रहे हैं। when n is equal to 2, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा। when n is equal to 3, रिमाइंडर विल बी 3 क्यूब 27 आ जाएगा। बट क्या 27 रिमाइंडर हो सकता है? 11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर हमारा 27 तो नहीं हो सकता है, तो 27 को फर्दर डिवाइड करोगे 11 से, so remainder will be 5. when n is equal to 4, remainder will be 5 into 3, because remainder हमारा n is equal to 1 के लिए 3 आया था, 5 into 3 15, और 15 again since 11 से बड़ा है तो 15 by 11 remainder will come out to be equal to 4. then again when n is equal to 5, remainder will be 4 into 3 12, but 12 हमारा 11 से बड़ा है, again remainder 11 से डिवाइड करके प्लस 1 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। so there is a cyclicity of 5, clearly cyclicity हमारा 5 का है। ठीक है, सो इफ n इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 5, तो रिमाइंडर विल बी प्लस 1, मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 1 होगा, रिमाइंडर विल बी 3, मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 2 होगा, रिमाइंडर विल बी 9, मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 3 होगा, रिमाइंडर विल बी 5, एंड मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 4 होगा, रिमाइंडर विल बी 4। तो पावर इज 75 इज मल्टीपल ऑफ 5 स्ट्रेट अवे, तो आंसर विल बी 1 ओनली, आंसर विल बी 1 ओनली। इज दैट क्लियर? स्पेशली स्मॉल वैल्यूज और जब नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स है तो वहां पे ये चीज बहुत हैंडी है, बहुत इजीली काम करेगा। ठीक है, ऑल्सो वी कैन राइट 58 एज 55 प्लस 3 टू द पावर 75 डिवाइड बाई 11, सो द क्वेश्चन कन्वर्ट्स टू, बिकॉज रिमाइंडर यहाँ पे क्या 3 टू पावर 75, तो क्वेश्चन कन्वर्ट्स टू 3 टू पावर 75 डिवाइडेड बाई 11 का रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है, एंड वी नो कि 3 टू द पावर 2 तो 9 है, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11, और 11 के आसपास भी नहीं है, यानी कि 2 लेस है। 3 क्यूब इज 27 प्लस 5 रिमाइंडर आ रहा है 11 से डिवाइड करने पे, 3 टू पावर 4 इज 81 प्लस 4 रिमाइंडर आ रहा है, 3 टू पावर 5 इज 243 विच इज 242 प्लस 1, सो 11 का मल्टीपल प्लस 1, सो 2 टू पावर 5 3 टू पावर 5 से कनेक्ट कर सकते हैं स्ट्रेट अवे। वही सेम चीज हमने यहाँ की है, बट यहाँ पे रिमाइंडर निकाल के चीजें ज्यादा आसान हो गई। इजंट इट सो? क्या ये क्लियर है? ठीक है, सो अगर हम 3 की पावर से भी कनेक्ट करते तब भी एग्जैक्टली यही सेम प्रोसेस करते। इनफैक्ट वही तो हम कर रहे थे, बार बार 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, बिकॉज रिमाइंडर वाज 3 व्हेन n वाज इक्वल टू 1। ओके, सो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग दीज वैल्यूज, wasn't this easy? 3 into 9, 9 into 3 27, 27 by 11, remainder came out to be 5. Now 5 into 3, next time क्या करोगे? 5 जो हमारा रिमाइंडर आया उसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो 5 into 3 15, 15 डिवाइड बाई 11, रिमाइंडर विल बी 4, देन 4 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, रिमाइंडर विल बी 12 by 11, 1 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर, और 1 आ गया यानी कि साइकिल हमारी इसके बाद में रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, so the question is 32 to the power 32 to the power 32 and that is being divided by 7, so what will be our remainder? 32 to the power 32 to the power 32 divided by 7, what will be our remainder? So since we are dividing by 7, there are only 7 possibilities for the remainder. It could be 0 or 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. अब 0 तो हो नहीं सकता because 32 is not a multiple of 7, 2 का मल्टीपल है, I mean 2 की पावर है, isn't it so? 32 is 2 to power 5 और उसका हम पावर कर रहे हैं, एक्सपोनेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली 7 का मल्टीपल तो नहीं आएगा, 0 तो आंसर नहीं आएगा। सो एट मैक्स देयर विल बी अ साइक्लिसिटी ऑफ 6, कोप्राइम नंबर्स भी हैं, 32 and 7 आर कोप्राइम। (32 divided by 7 gives us रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर देता है 4, बिकॉज 32 is 28 plus 4,
एंड 28 इज मल्टीपल ऑफ 7. ठीक है, सो 32 को हम 28 प्लस 4 लिख सकते हैं. क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा, तो लिख देते हैं 28 प्लस 4 टू द पावर 32 टू द पावर 32. और बाकी क्योंकि हम साइक्लिसिटी का अप्रोच कर रहे हैं तो नहीं भी लिखोगे ऐसे तब भी क्वेश्चन इजी रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम रिमाइंडर 4 ही बार बार मल्टीप्लाई करेंगे. बट लिख दोगे तो आसान है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है. डिवाइड करोगे 7 से तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 4 टू द पावर 32 टू द पावर 32 एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाई 7. और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. अभी भी ये नंबर बहुत ही टिपिकल है, बहुत मुश्किल है, देख के ही डर लग रहा है. इजंट इट सो? एक बात जो यहाँ पे समझनी है, जो बहुत क्लियर है समझना, दैट इज कि बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हो. देखो, इफ इट इज गिवन दैट a टू द पावर n टू द पावर n, so this is not equal to a to the power n to the whole power n. both are different. ये दोनों वैल्यूज हमारी डिफरेंट है, वो दोनों चीजें डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल 2 to the power 3 to the power 3 and 2 to the power 3 to the whole power 3 both are different. this values यहां पे क्या करोगे, सबसे पहले पावर को कैलकुलेट करोगे. तो पावर हमारा क्या है, 3 क्यूब पावर है, 2 to the power 3 क्यूब पावर है, तो 3 to the power 3 is 27. तो 2 to the power 27 है ये वैल्यू. और राइट हैंड साइड का वैल्यू इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है. राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या होगा, 2 to the power 3 to the whole power 3, 3 into 3 9 आ जाएगा. So this value is 2 to the power 9. These two are definitely not equal. So कभी भी गलती नहीं करना है. 32 to the power 32 into 32 नहीं है. That is a different question. This is 32 to the power 32 to the power 32. Okay, clear? ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए. Okay, now this is our power 32 to the power 32 and base is 4. तो साइक्लिसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. फ्रेश पेज पे लिखते हैं 4 to the power n डिवाइडेड बाई 7. थोड़ी देर के 32 to the power 32 को भूल जाओ और देखते हैं पैटर्न क्या बनता है हमारा. ठीक है, सो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. मैक्स टू मैक्स 6 में हमें साइक्लिसिटी मिल जाएगा, बिकॉज 6 ही पॉसिबल रिमाइंडर्स है और 4 and 7 है कोप्राइम. ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 पे 4 टू द पावर n विल बी इक्वल टू 4, देन 16, देन 64, देन 256, 1024, 4096. दो इन सब नंबर्स की जरूरत नहीं थी, क्योंकि रिमाइंडर हमें निकालना है और रिमाइंडर बस n इक्वल 1 के लिए निकालो. उसके बाद की कहानी आसान है. सो फॉर n इक्वल टू 1 रिमाइंडर कितना आएगा, 7 से डिवाइड करने पे 4 ही आएगा रिमाइंडर. नेक्स्ट वैल्यू विल बी डिपेंडेंट ऑन 4 स्क्वायर. 4 स्क्वायर और 4 स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16. 16 डिवाइडेड बाई 7 रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 2 ओनली. 2 ओनली. नाउ अगेन क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे रिमाइंडर से जो हमारा n इक्वल 1 पे आया था, 4 से मल्टीप्लाई करोगे. 2 into 4 इज इक्वल टू 8 and 8 divided by 7 gives us remainder equal to 1 only. So there is a cyclicity of 3 only. 4 2 1 4 2 1, यानी कि अब इसके बाद में फिर से 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा. ठीक है, so if n is a multiple of 3k, remainder will be equal to 1. if n is a multiple of 3 to the power k, 3k plus 1 के फॉर्म में है n हमारा, 3 के मल्टीपल से एक ज्यादा है तो फिर 4 रिमाइंडर आएगा. if n is 3k plus 2 के फॉर्म में, then remainder will be 2. So these are 3 of the possible remainders, only 3 possible remainders. और साइक्लिसिटी हमारा 1 4 2 का ही है. ठीक है, 4 to 1 का साइक्लिसिटी है. क्लियर है, क्या ही क्लियर है. अब अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं. तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है 4 to the power 32 to the power 32. तो हमें अब सिर्फ ये करना है, वी नीड टू फाइंड आउट कि 32 to the power 32 हमारा whether this is divisible by 3 or 3k plus 1 or 3k plus 2, which of the following cases is there. और जैसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. ओके, तो बेसिकली वी हैव टू डिवाइड 32 टू द पावर 32 बाय 3 टू चेक व्हाट विल बी द रिमाइंडर. क्या आएगा रिमाइंडर, 32 टू द पावर 32 डिवाइड बाय 3, व्हाट विल बी अवर रिमाइंडर. 32 इज 30 प्लस 2, सो दिस कैन बी रिटन 30 प्लस 2 टू द पावर 32 डिवाइड बाय 3, व्हाट विल बी द रिमाइंडर. और रिमाइंडर आएगा हमारा 30 तो मल्टीपल है 2 टू द पावर 32, तो 2 टू द पावर 32 डिवाइड बाय 3, रिमाइंडर क्या होगा. और 2 की पावर्स में हमें पता है क्या रिमाइंडर आ रहा है, 2 1 2 1 2 1, तो इज साइक्लिसिटी ऑफ 2 ओनली. तो 2 की ऑड पावर गिव्स अस रिमाइंडर 2, 2 का इवन पावर गिव्स अस रिमाइंडर 1, बिकॉज 2 का इवन पावर इज इक्वल टू 4 बाय 2 टू द पावर इवन पावर इज इक्वल टू 4 व्हिच इज इक्वल टू 3 प्लस 1. दैट इज व्हाई हमें रिमाइंडर हमेशा 1 मिलेगा. और यहाँ पे पावर क्या है, इवन है, पावर इज इवन, तो डायरेक्टली हमें पता है रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 1. अदरवाइज ये भी कर सकते थे 2 टू द पावर 16 है, यानी कि 4 व्हिच इज 3 प्लस 1 टू द पावर 16 है. तो यहाँ से भी तुम्हें पता चलेगा रिमाइंडर 1 ही है. ओके, क्लियर है. तो डेफिनेटली रिमाइंडर हमारा 1 आ गया यहाँ पे. और रिमाइंडर 1 आने का मतलब क्या हुआ कि दिस नंबर 32 टू द पावर 32, दिस इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ 3k प्लस 1, बिकॉज व्हेन वी आर डिवाइडिंग बाय 3 रिमाइंडर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1. और अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो फिर हमारा रिमाइंडर क्या होगा, व्हेन वी आर डिवाइडिंग 4 टू द पावर दिस वैल्यू बाय 7. ठीक है, आंसर हमारा 1 नहीं है, 4 टू द पावर दिस वैल्यू. अभी हमने पावर को डिवाइड करके रिमाइंडर चेक किया है, तो 3k प्लस 1 वाला केस है, सो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 4.
So our answer in this case will be equal to 4. This will be equal to 4. क्या ये क्लियर है? फिर से एक बार इसको समझते हैं. 32 to the power 32 to the power 32 that is being divided by 7. We need to find out the remainder. 32 is 28 plus 4. So this question converts to 4 to the power 32 to the power 32 divided by 7. Then we need to find out the remainder. ठीक है, तो या तो हमने क्या किया, रिमाइंडर्स का साइक्लिसिटी देख लिया कि रिमाइंडर हमारा फर्स्ट केस में n = 1 पे 4 आ रहा है, n = 2 पे आ रहा है, 16/7 यानी 2 आ रहा है, n = 3 पे दिस इज कमिंग आउट टू 2 × 4 यानी 8/7. रिमाइंडर केम आउट टू बी इक्वल टू 1. सो देयर इज अ साइक्लिसिटी ऑफ 3. साइक्लिसिटी ऑफ 3 है. दिस इज सेम एज सीइंग कि तुम देखते 4 टू द पावर 1 कितना है, 4 है, 4 टू द पावर 2 कितना है, 16 है, 4 टू द पावर 3 कितना है, 64 है, और 64 इज 63 + 1. तो बेसिकली 7 का मल्टीपल +1, तो हमें 3 का साइक्लिसिटी मिल गया. तो हमें बेसिकली 4 टू द पावर 3 में कन्वर्ट करना है पावर को, बट प्रॉब्लम ये है 32 टू द पावर 32 को 3 के मल्टीपल में कन्वर्ट कैसे करोगे? डिवाइड जरूर कर सकते हो, ठीक है, डिवाइड जरूर कर सकते हो. तो अल्टीमेटली हमें डिवाइड करना था 32 टू द पावर 32 को 3 से, एंड वी नीड टू चेक आउट व्हाट विल बी द रिमाइंडर, एंड दैट रिमाइंडर केम आउट टू बी इक्वल टू 1. जब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर केम आउट टू बी इक्वल टू 1. That implied कि basically the question is 4 to the power 3k plus 1 being divided by 7, what will be our remainder? And that will be same as when we are dividing 4 to the power 1 by 7. So same as equal to 4. Same as equal to 4. क्या ये clear है? ठीक है, ओके, समझ में आता है? बढ़िया. So now you comment in the answers what will be the answer if we divide 32 to the power 32 inside the bracket and that to the power 32 divide by 7. So what will be our remainder in this case? What will be our remainder in this case? Okay. ठीक है, this is our first question. And second, if we are dividing 32 to the power 32 by 9, so what will be the remainder? ठीक है, what will be the remainder in this case? Comment these answers. इतना ही रखते हैं सेशन में, एंड आई बिलीव जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ में आया होगा. इफ देयर इज एनी डाउट देन मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट. And that is all for this session. Bye bye. Take care and keep learning.